Good morning, class 12. So, as we are discussing the unit haloalkane and haloarene, the next video which I am going to discuss with you, that is based on SN1. As in the last video, I have told you that in the next video we will talk about SN1, that is a unimolecular substitution reaction. Now, it is already clear from the name, unimolecular, that means depend upon only one molecule. Substitution हो रही है, reaction है SN1. S means substitution, N means nuclear, and this is what? Unimolecular. One represent unimolecular. Okay. So, starting with the concept. सो जब हम बात करते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, द एग्जांपल विच आई एम गोइंग टू टेक हियर दैट इज CH3 you have to tell me the name of this one. CH3, okay, CH3, then we are having Br and then OH negative. न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, सॉरी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन होगा ना, एडिशन नहीं होगा. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कौन है ये? नेमिंग की है आपने. इट इज टर्शरी, ओके, व्हाट? ब्यूटाइल ब्रोमाइड. So tertiary butyl bromide is this. When it react with OH negative, then what will be there? We will get the product that is like this. So we will get tertiary butyl bromide. We will get here from tertiary butyl bromide we are getting tertiary butyl alcohol. So we are getting this product. Now, why this is known as a unimolecular substitution reaction? Because in this case the rate of reaction, okay, that is directly proportional to what? The concentration of alkyl halide. That means it doesn't depend upon the concentration of nucleophile. यही बात हुई कि वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा. वी हैव सेड कि वो सिर्फ एक की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? यूनिमोलिक्यूलर. ओके. टू एलैबोरेट इट मोर, we are going to discuss the mechanism of SN1 reaction. Mechanism of SN1 reaction. Okay. So when we talk about the mechanism of SN1 reaction, so we are having two steps. Step 1, formation of carbocation. In first step there is a formation of carbocation. When the carbocation is formed, we will have like this. We are having tertiary butyl bromide. So what is there? First of all, the bond between the carbon and bromide, that will be breaked, and we will get C positive, CH3, CH3, CH3 plus Br negative. So carbocation is formed here. You can see this is tertiary butyl carbocation. Okay, this is a tertiary butyl कार्बोकेटायन है ना, ये टर्शियरी बुटाइल कार्बोकेटायन. सो दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप. ये एक स्टेप है जो क्या है? स्लो स्टेप है. ओके, दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप. अब क्या होगा? स्टेप 2 में क्या होगा? देखिए जरा. व्हेन वी आर हैविंग अ स्टेप 2, आई एम गोइंग टू मेक इट हियर ओनली. When we are having step 2, so what will happen in step 2? There will be
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखना क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं आपको। सो देयर इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन व्हाट? अ कार्बोकेटाइन वी आर हैविंग that we have got from a slow step, then that carbocation react with the nucleophile. Nucleophile will attack from front side. देखो है ना डिफरेंस, it will attack from front side, it will not attack from back side. So we will get what? CH3 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 and OH. So tertiary butyl alcohol. Observations क्या आई? इसमें कार्बोकेटाइन बना, that is not formed in SN2. Another thing, here the bulky group is also present, but still the formation of another substitute is take place. How it take place? It take place from front side, बैक साइड से अटैक नहीं हुआ, सो हिंड्रेंस की बात ही नहीं आई यहाँ पे। अब जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन ये ज़्यादा स्टेबल है ना। अब और बात करें, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हुई, जो कॉन्फ़िगरेशन थी, मतलब जो भी जैसे भी था अरेंज्ड वैसे ही उस पोजीशन पे ही OH नेगेटिव आ गया। और ये स्टेप जो था हमारा, ये था हमारा फास्ट स्टेप। अब थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, ये आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ के आए हैं, सो पढ़ते हैं आप। केमिकल काइनेटिक्स में आपको पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन स्लो स्टेप। सो स्लो स्टेप वी आर हैविंग ओनली वन रिएक्टेंट, दैट इज व्हाट? Alkyl halide. In rate of reaction that depend upon slow step, so in slow step we are having only one reactant, that is alkyl halide. So rate of reaction is directly proportional to the concentration of alkyl halide, and this is only a single molecule, so this is why it is known as nucleophilic substitution, that is unimolecular. It is unimolecular. So in this case what is the observation कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा भी, ये दो स्टेप में होगी, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये हो दो स्टेप में रही है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? एक पे। कंफ्यूज नहीं होना SN2 और SN1 में। इन SN2 2 मॉलिक्यूल्स वो एक स्टेप में होती है, दो पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दो स्टेप में होती है लेकिन डिपेंड एक पे करता है, ठीक है। सो ये थी हमारी SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम इसी में बात करेंगे, इसी वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसी के रिलेटेड है SN1 के, तो हम यहीं पे कर लेंगे उसको डिस्कस। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज़ अ नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ अ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। सो जब हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, ये हमने पहले भी इसी चैप्टर में बात की है, इसी यूनिट में हमने बात की कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की। तो उसी आपको हमने वहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट की बात की थी ना, कि हमारा ये 2 डिग्री से 1 डिग्री ज़्यादा न्यू पेंटाइल का जब हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है SN1 में। Okay, the example I am going to take here so that it would be more elaborated. The example which I am going to take, that is a 2-bromo-3-methylbutane. Its name is 2-bromo-3-methylbutane. So what is there when the addition of a nucleophile, sorry, substitution, I am using addition again and again, so here will be substitution of nucleophile take place. The mechanism which I am following here, SN1, मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रही हूँ कि SN1 फॉलो कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंबल भी दे दिया। अब क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से Br जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ऐसे ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ SN1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से पहले Br जाएगा स्टेप 1 में, एंड वी विल गेट कार्बोकेटाइन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सो वी देयर विल बी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द प्रोडक्ट विल बी CCH3 CHOH CH3. दिस इज व्हाट? 3-methyl butane 2-ol. ये मेरा क्या था? दिस इज माई एक्सपेक्टेशंस, दिस इज एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेड था ये, है ना। बट अब बात आ गई ना, सो जब मैं मैकेनिज्म की बात करती हूँ,
सो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ इस रिएक्शन में, सो माई स्टेप 1 व्हाट इट सेज, सी क्या होगा मेरे स्टेप 1 में, यहाँ देखिए CH3 CH3 we are having, then CH, okay here CH, then we are having Vr, then CH3, ये हमारा रिएक्टेंट था। अब SN1 फॉलो कर रहा है भाई, जब SN1 फॉलो कर रहा है तो पहले तो बनेगा कार्बोकेटाइन, ये हमारा कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे, यही बनेगा कार्बोकेटाइन। अब अगर ये हमारा कार्बोकेटाइन बना तो ये देखो ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 मिथाइल ग्रुप सराउंड कर रहे, इट इज़ 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है ना। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये जो हमारा कार्बोकेटाइन होगा वो कितने डिग्री होगा, ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये जैसे ही मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट होगा आपके पास कुछ ऐसा आएगा CH3 CH3, तो यहाँ पे तो ये जो कार्बोकेटाइन आ गया, अब ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये तो फिर से वही आ गया, ये भी 2 डिग्री है ना, फिर से 2 डिग्री बन गया, तो ये मिथाइल शिफ्ट तो यहाँ पे नहीं होगा, तो ये स्टेप तो हो गया कैंसिल, है ना। कार्बोकेटाइन बना, अब मैं क्या कर रही हूँ देखो, आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखा रही हूँ। अब यहाँ देखिए कार्बोकेटाइन तो बन गया, ठीक है, ये हमारा जी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना पड़ा है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है दिस इज 2 डिग्री, अगर मिथाइल शिफ्ट करते हैं तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ केसेस में मिथाइल शिफ्टिंग पे भी होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। अनदर ऑप्शन वी आर हैविंग दैट कि यहाँ से हम एक हाइड्रोजन क्या करें, यहाँ से करोगे तो ये फिर से इस पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, ये सही नहीं होगा। इफ़ यू विल शिफ्ट वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस, सो यहाँ पे अगर तुम हाइड्राइड शिफ्ट करते हो, सो व्हाट इज देयर, यू विल गेट CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3, ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 3 डिग्री। सो अब जब न्यूक्लियोफाइल आप ऐड करोगे that will be at this position and the actual product is different from the expected one. Clear? The actual product is different. We are expecting it should be at this carbon, but the OH is present at this carbon. So the probabilities we have seen, either there could be a methyl shift or there could be a hydride shift. Methyl shift तो हुई नहीं, तो हमारी next probability क्या है कि hydride shift हुई है। So our topic is carbocation rearrangement. So what is SN1? जब हम SN1 की बात करते हैं, so we can say that in case of SN1 reaction, the carbocation can undergo rearrangement. When the carbocation undergo rearrangement, then what is there? It will form a carbocation that is more stable, more hyperconjugative structures. So more stability, better is the reaction. Energy कम, stability ज़्यादा. So इसीलिए हमारा जो product है that is different from the expected one. Clear है? So that's why we are getting a product that is expected, is we are getting different product from the expected one. So more examples even you can discuss here. राइट अब मैं यहीं पे इसी को टॉपिक को हम फिनिश ही करेंगे। सो नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ, हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन द नेक्स्ट पेज, ओके, दैट विल बी ऑन द reactivity order of alkyl halide. So the next topic we are having, that will be the reactivity order of alkyl halide. जब reactivity order की बात करते हैं, so according to SN1 what should be the order? अगर आपको SN2 clear है तो आपको इसका order पता होगा. It should be 3 degree is more reactive, then 2 degree, then 1 degree, then alkyl halide. So 3 degree alkyl halide is the most stable and most favorable toward SN1. क्यों? क्योंकि 3 degree कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 degree ये ज़्यादा स्टेबल होता है 1 से। अगर मैं 3 2 में से कंपेयर करूँ तो 3 ज़्यादा स्टेबल है, अगर
इसमें से बात करें तो ये जो एल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री हैं, अगर मतलब ओवरऑल मैं रिजल्ट की बात करूं, सो हमारे जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हैं और जो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड होते हैं ये फेवर करते हैं SN2, और ये स्पेशली जो हमारे 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं दे प्रेफर टू बी फॉर्म न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय SN1। क्लियर है? सो कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए, देन ओनली यू विल सॉल्व द आंसर्स। ओके, important है, comparison should be there, you must know that how you have to compare the reaction। ओके, अगर हमारे पास एक और है, रीजनिंग क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको डायरेक्ट तो कोई नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिमॉलिक्यूलर, व्हाट डू यू मीन बाय बायमॉलिक्यूलर, नोबडी विल आस्क। Definitely the questions could be given to you, a question could be what would be the expected product, so for that the basic should be clear। Okay, another question we are having allylic and benzylic। ओके, सो वी आर हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इसी में बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग allylic halide। सो दिस इज allylic halide। allylic ब्रोमाइड की बात कर लेते, BR लेते तो यहाँ पे, सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। अब इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि SN1 होगा या SN2 होगा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। अगर मैं SN2 की बात करूं बेटा, आप देखो अगर आप SN2 सोच रहे हो, अगर SN2 का अटैक होगा तो आप देखो कि यहाँ पे इतना बड़ा बल्कि ग्रुप पड़ा है, सो अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक फ्रॉम बैक साइड इट विल बी डिफ़िकल्ट होगा, है ना। लेकिन अगर मैं SN1 की बात करूं तो अगर ये यहाँ से जाता है तो वी विल गेट अ कार्बोकटाइन, ठीक है। तो अगर इसका आंसर क्या होगा, सो द आंसर ऑफ दिस वन इज इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। सो SN1 में व्हाट विल बी देयर, वी आर हैविंग इन स्टेप 1 क्या होगा, वी विल हैव अ कार्बोकटाइन फॉर्मेशन। स्टेप 1 में वी विल हैव CH2 double bond CH2 positive plus Br negative, so we are having which type of carbocation, allylic carbocation, so we are having allylic carbocation here, right। so this allylic carbocation it is already clear, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की तो चलो बात नहीं करते हम यहाँ पे क्या इसकी बात करेंगे, रेजोनेंस की। ये यहाँ जाएगा एंड वी विल गेट अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट विल बी CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, सो वी आर हैविंग 2 प्रोबेबिलिटी, सो रेजोनेंस स्टेबलाइजर्स दैट्स व्हाई इट विल फेवर SN1। नेक्स्ट तो आपको पता ही है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। सेम फॉर बेंजाइलिक, नेक्स्ट वन वी आर हैविंग बेंजाइलिक हैलाइड। सो व्हेन यू आर हैविंग बेंजाइलिक ब्रोमाइड, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए अगेन योर आंसर विल बी SN1। वाई, बिकॉज इसमें फिर से कार्बोकटाइन बनेगा, फिर से वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, बना सकते हो ना इसकी। सो ये हमारा आज का टॉपिक था दैट इज रिलेटेड विद SN2, सो कंपैरिजन और सॉरी दैट इज रिलेटेड विद SN1। सो कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी एक फिनिश नहीं हुआ SN1 SN2, अभी इसमें हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की। फिर जब हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की बात करेंगे, कुछ नई चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पे, तो उसके बेस पे भी हम SN1 SN2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो दैट वी विल डिस्कस बाय टुमारो। थैंक यू वेरी मच।